Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything. So next ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ application of derivative ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ how to find the approximate value using differential. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਥਰਡ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇੱਕ, ਬਸ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ y ਲੈ ਲਿਆ ਅੰਡਰ ਰੂਟ x, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿੱਤਾ 51 ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ 49 7 × 7 7 ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 14। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 49। ਸੋ ਮੈਂ x ਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂਗੀ 49, x ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 49। ਸੋ 49 ਤੇ 51 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ 2 ਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ dx ਹੋ ਗਿਆ, dx ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਲਿਆ x ਤੇ dx। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਡੈਲਟਾ y ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 51 ਮਾਈਨਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 49। ਅੰਡਰ ਰੂਟ 49 ਹੈਗਾ 7, ਅੰਡਰ ਰੂਟ 51 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 7 ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ y। ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ ਓਕੇ, ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ dy upon dx into dx, ਮਤਲਬ ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ ਨੂੰ dy ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ dy upon dx into dx ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। dy upon dx ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 1 upon 2 ਅੰਡਰ ਰੂਟ x, ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਮੋਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ dx ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਾ ਨਿਕਾਲੋਗੇ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 upon ਅੰਡਰ ਰੂਟ x, ਤੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ x ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 49 ਯਾਨੀ 7 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0.14। ਸੋ ਇਹ ਬਸ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 7.14। ਹੋਰ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਅੰਡਰ ਰੂਟ 401, ਸੋ y ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਅੰਡਰ ਰੂਟ x ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 400 ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ 20 ਦਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 1 ਦਾ, dx ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1। ਸੋ ਅੰਡਰ ਡੈਲਟਾ y ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨਾ, 'ਚ ਚੇਂਜ ਦੋਨੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ 20 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ 20 ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ, ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ ਮਤਲਬ dy ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ dy upon dx into dx, dy upon dx ਇੱਧੇ ਰਹਿਣਾ, dx ਕਿੰਨਾ ਆ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 400, ਉਹਦਾ 20 ਆ ਗਿਆ 1 upon 40 0.025, ਉਹ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 401 ਇਹ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 0.037 y ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2, ਇੱਥੋਂ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ 361, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 0.0361, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ 0.009 ਦਾ ਚੇਂਜ। ਅਗੇਨ ਡੈਲਟਾ y ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 0.0037। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ 25.2, ਹੁਣ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ x, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ 25 ਹੁੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ 0.2 ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਡੈਲਟਾ y ਕੱਢ ਲਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਹਨੂੰ 5 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਡੈਲਟਾ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ dy upon dx into dx 0.2 dx ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ 0.02, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 5-7 ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਰਿਟਨ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਟਿਪਸ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ 49 + 5 ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ 49 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ x 49 dx ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 14.5 ਦਾ, 49 ਤੇ 49.5 'ਚ 0.5 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਫਿਰ ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਸਮ ਹੈ ਕਿ 6 ਉਹ ਲਏਗਾ ਉਹ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ आई थिंक ये सॉल्व किया होया अगे। ये देखो पावर 1/3 आ गई ना, हुण 1/3 ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ 1/3 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, 1/3 ਕਿਊਬ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਹਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ y = x ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਹੈਗਾ 27, 3 × 3 × 3 ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ 27 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਪਾਵਰ 26, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 1 ਦਾ ਸਿਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ -1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ -1 ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ -1 ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ dx -0.4 ਆ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਆ ਗਿਆ 0.064, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 0.04 ਲਵਾਂਗੇ -0.04, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 5th ਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ 0.6 ਵਾਲਾ, ठीक है।
सो ये भी जरा ध्यान रखना कि किहदे विच आपां माइनस लैना किहदे विच प्लस लैना, क्योंकि इत्थे साडे कोल मोस्टली पहला प्लस वाले ही क्वेश्चन आए सीगे, ये सारियां च प्लस है। नैगेटिव वाले का ध्यान रखना। देखो ये भी साढ़े को पिछे आया 49 भी 400 पिछला आया, अगे नहीं आया है ना। सो इस करके इन्होंने हो ही रहा, ये भी पिछली वैल्यू जो अगे जाना फिर -1 आना, ठीक है। जो हम 27 अगे आया तो -1 लवेंगे, डिफरेंस वो -1 लवेंगे, ठीक है। सो एक्स प्लस मतलब जो मैं DX कर देव तो 26 हो जाएगा, ठीक है। सो लिखने का तरीका ये देखो हम इनू कीता तरीका डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3। सो एक्स की वैल्यू कितनी साढ़े कोल 27 माइनस डेल्टा एक्स कितना सीगा -1। सो ये जगह डेल्टा एक्स सीगा -1 आ गया, माइनस एक्स की पावर 1/3। सो माइनस आ गया साढ़े कोल 3 एक्स की पावर 1/3 जो करोगे पावर 1/3 3 आ जाएगा ना, 3 दी एंड पावर क्यूब के विच। सो इतों साढ़े कोल इनू लिखने का तरीका है। सो आ गया 26 की पावर 1/3 माई इक्वल टू 3 उधर ला जो 3 प्लस डेल्टा वाई तो तुहानू फाइंड करना होंदा dy/dx इंटू dx, dy/dx इत्थे कर लेना है, dx की वैल्यू तुहाडे कोल -1 है, पुट करके साढ़े को वैल्यूज इत्थे जाके वापस पुट कर देनी। सिमिलरली बाकी क्वेश्चन है भी देखना तो सेम ही प्रोसीजर फॉलो होएगा, पॉइंट्स लिए भी सेम ही पावर 1/3 करके करने पैने हैं। सम प्रैक्टिस लिए मैं जस्ट तुसीं स्क्रीनशॉट ले जाओ तो तुहानू इत्थों जिहड़ा क्लैरिटी हो जाएगी। बाकी इहदी PDF भी शेयर कर दांगी मैं टैलीग्राम चैनल ते। इहदी 15 हुण पावर 1/4 आ, पावर 1/4 देखो हुण इहदे लागे किहड़ा होएगा 2 दी पावर 4 16 हुंदा ना, 15 दे वैरी नीयर अबाउट हैगा दे। सो एक्स इक्वल टू 16 आ गया, दोनों च डिफरेंस हुण फिर अगे हैगा एक तो -1 लवांगे, एक्स प्लस DX मतलब इक्वल टू 15 बनता। पावर 1/4 हुण इनू लिखन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/4 माइनस एक्स की पावर 1/4, जो 3 सी तो पावर 1/3 माइनस 1/3 लेंदे सी, ठीक है। 16 की पावर 1/4 तो 2 आ जाएगा ना, 2 की पावर 4 लिखांगे अंदर तो 4 ना 1 इतने कटिया जाएगा। सो वो अकॉर्डिंग फिर डेल्टा वाई सेम फाइंड करना, सेम ही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। जो 1/2 है इतने पावर 1/2 माइनस 1/2 लेने 3 है तो 1/3 माइनस 1/3 1/4 है तो 1/4 माइनस 1/4 करोगे ना। सम तुसी खुद ट्राई करना, स्क्रीनशॉट ले जाओ, ठीक है। स्क्रीनशॉट इहदा भी ले लो तुसी सारे। हुण फंक्शन च देखो f ऑफ 3.02 fx सानू दिता 3x² प्लस 15x प्लस 3। सब तो पहला तो डेरीवेटिव फाइंड कर लो, फिर वो डेल्टा एक्स थोड़ा जहा तुसीं हुण डेल्टा एक्स की फॉर्म च लिखोगे, मतलब fx प्लस डेल्टा f डैश x इक्वल टू 3.02 असी 3 ले लेना तो डेल्टा एक्स जो चेंज आया 0.3 का, बस वो वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है ना। तो इतने fx 5 आएगा 0.01 वो चेंज जो आ गया डेल्टा एक्स। फिर जो डेल्टा देखो तुहानू पता चल जाएगा x 5 डेल्टा एक्स 0.001, सौखा ही है ये क्वेश्चन। देखो फाइंड दी अप्रॉक्सीमेटली चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज्ड बाय इंक्रीज द साइड बाय 2%। वॉल्यूम देता है x क्यूब, ठीक है। dy/dx आ गया 3x², क्या उन्हें बोलिया आया कि 2% चेंज किया गया वो, ठीक है। साइड जी इंक्रीज कितना किया गया 2%। डेल्टा एक्स इक्वल टू 2% यानी x इक्वल टू 2x/100, समझते ना। x का 2% चेंज किया गया वो। सो बस हुण dy/dx 3x² नाल डेल्टा एक्स जो चेंज है चेंज तुसीं उत्थे जो पुट कर देना है तो तुहाडे कोल चेंज इन वॉल्यूम जोड़ा वो फाइंड हो जाना, क्योंकि डेल्टा भी पता करना सी, नो कि 3x² इंटू डेल्टा एक्स तुसीं इत्थे जो पुट कर देना, ठीक है। उन्होंने तुहाडा आंसर आ गया। फाइंड दी अप्रॉक्सीमेटली चेंज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्यूब का कि 6x² चेंज कितना आ गया 12x, बट वो कहता साइड कितनी चेंज हुई 1% यानी x इक्वल टू -1%। डिक्रीज आ तो -1 लेना, इंक्रीज आ तो प्लस ही रहन देना। सो -1% ऑफ x कितना गया -x/100, बस इतने वो पुट कर देना। मतलब बहुत विद इन द सैकेंड होने वाले सम इदा के क्वेश्चन पेपर च आ जाते हैं। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर जो 9 सेंटीमीटर विद एरर, ये थोड़ा जिहा एरर दसिया उन्हें, एरर जो प्लस माइनस हो जाना 0.03। फाइंड दी अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 4/3 πr³ चेंज कितना गया 4/3 π 3r² का r³ का 3r², ये कट के साढ़े को 4πr² आ गया। नाल एरर कितना आया 0.03 का, वो तुसीं मल्टीप्लाई कर देना तो r उन्हें कितना किया 9 पुट कर देना, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर जो 9 सेंटीमीटर विद एरर, अगेन वही आई थिंक वही क्वेश्चन है, सॉरी। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड 7 मीटर, ठीक है, रेडियस 7 मीटर विद एरर, अगेन एरर इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कि 4/3 πr³ dy/dx, वो एरर जो तुसीं मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू पुट कर दो।
फाइंड cos अंडर cos 61 डिग्री इट इज़ बीइंग sin 61 डिग्री इन्ना दिता ते 1 डिग्री जिहड़ा आ वो इन्ने रेडियन के बराबर दिता है। हुण असीं सानूं तां cos 60 दी तां पता हुंदी है ना, तो असीं x 60 डिग्री ले लिया, चेंज कितना आया दे विच dx 1 डिग्री दा सिर्फ डेल्टा x आया, dy अपॉन dx तुहानूं लैना आउंदा, उहदे अकॉर्डिंग फिर आपां उही वैल्यूज़ इत्थे पुट करके कर लेना। y इज इक्वल्स टू x दी पावर 4 माइनस 10, इत्थे थोड़ा मिसप्रिंटेड हैगा, सो x दी पावर 4 माइनस 10 एंड x इफ x चेंज हो रहा फ्रॉम 2 to 1.99, ठीक है। सो दस दिता उन्हें चेंज कितना हो रहा, अप्रोक्सीमेटली चेंज इन y फाइंड करना, y दिता हुआ x दी 4 माइनस 10 मतलब चेंज पहला तो dy अपॉन dx फाइंड कर लो। x साडा 2 तो 1.99 गया, मतलब x इक्वल टू 2 है तो x प्लस dx मतलब चेंज होकर 1.99 है। सो dx उत्तों तुसीं देख सकते हो कितना गया माइनस 0.01। सो dy तुसीं कट सकते हो dy अपॉन dx करके माइनस 0.32 का चेंज आया। ये तुसीं दूसरा क्वेश्चन कर लेना। यूजिंग डिफरेंशिएशन टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ऑफ log e 4.01 इट इज़ बीइंग दैट log e 4 की वैल्यू दी है, log e x इत्थे x 4 है जो चेंज dx का कितना है 0.01 का सिर्फ है ना, तो x प्लस dx हो गया 4.01 तो डेल्टा वाई साडे को log e दिता होया सानू 4.01 माइनस log 4 ये लिख दे आप चेंज है ना, दोनों से चेंज कितना माइनस करके। सो इथों डेल्टा वाई log e आ वाली वैल्यू पुट करनी, डेल्टा वाई चक उधर जो डेल्टा वाई तुहानू पता dy अपॉन dx इंटू dx, dy अपॉन dx तुसीं फाइंड इत्थे कर लेना है, y दिता है तो x तो तुहानू पता ही है 4 आ, तो 1.4 नाल dx कितना सीगा 0.01, फिर वो वैल्यू पुट कर देनी। सिमिलरली इदा ये वाले क्वेश्चन तुसीं फाइंड करने हैं। y इक्वल टू साइन x एंड x चेंजेस फ्रॉम पाई बाई 2 तो 22/14 फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली चेंज इन y इज इक्वल टू साइन x dy अपॉन dx आ गया cos x, x चेंज हो रहा फ्रॉम पाई बाई 2 तो 22/14 ओके, x मतलब पाई बाई 2 से जो कुछ थोड़ा जिहा ऐड किया dx तो 22/14 आ गया। सो इत्थों तुसीं dx फाइंड कर लो दोनों माइनस करके, फिर dy अपॉन dx तुहानू पता है dy किद्दां फाइंड करीदा चेंज dy अपॉन dx इंटू dx, dx भी फाइंड कर लिया असीं, dy अपॉन dx भी फाइंड कर लिया, 0 आ गया मतलब कोई चेंज आया ही नहीं, देयर इज़ नो चेंज। एक सर्कुलर मैटल प्लेट आ एक्सपैंड की गई अंडर हीटिंग सो दैट इट्स रेडियस इंक्रीज कहता हो जाए सिर्फ 2% ना, तुसीं अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया पता करना ऑफ प्लेट इफ रेडियस ऑफ प्लेट बिफोर हीटिंग 10 सेंटीमीटर सी। ये एरिया आ रेडियस हैगा, एक हुंदा एरिया पाई आर स्केयर सर्कुलर लिए है ना, तो चेंज कर लिया 2 पाई आर, बट वो कह रहा ये 2% चेंज आया वो पूरी हाइट हीटिंग ते 10 सेंटीमीटर का, 2 का 10% कर लो, सॉरी 10 का 2% कर लो, 2/10 आ गया, ए 10 दी हुई सी, डेल्टा ए डी ए अपॉन डी आर इंटू आर आएगा, इधर डी वाई पता करते सी क्योंकि तो घट ही हो जाता। सो डी ए अपॉन डी आर भी आप कर लिया, डी आर भी कढ़िया, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, क्लीयर है जी। सो काफ़ी सारे क्वेश्चन जोड़े मैं तुहानू दस दिते हैं जोड़े इंपॉर्टेंट आ, अगेन प्रैक्टिस करो, टाइप्स वाइज इन्होंने करके लिखो अपनी कॉपी ते हो जाएंगे। सो वीडियो पसंद आए लाइक एंड कमेंट करके दसना, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।